તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. Hi Karan, how are you? I am good. How are you? I'm sure अब आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको अंधेरे से डर तो नहीं लगता है ना? लोग क्या मुझसे ये पूछते हैं कि हमें पता है तुम्हें अंधेरे से नहीं लगता है लेकिन उजाले से लगता है। Oh. What do you have to say about this? What I'm feeling is that usually अंधेरा लोगों की लाइफ में it comes as a negative connotation कि बहुत अंधेरा छा गया है। मेरे लिए तो उल्टा हुआ है, मेरे लिए अंधेरा अंधेरा इधर बहुत उजाला। पॉजिटिव उजाला लाया है, रोशनी, पॉजिटिविटी। तो मेरे लिए तो लाइक अगर ऐसा अंधेरा सबकी दुनिया में छाए या मेरी लाइफ में छाए तो मैं तो हर रोज इस अंधेरे को एक्सेप्ट करूँ। Tell me a bit about, how, this show happened to you and what was the process? Because see, it's a heavy show, you know. I mean, I'm sure Yes. you are someone who's a perfect match for a very cute date, love story kind of a thing. Yeah. It was very different, So, as an actor, how easy or difficult it was to be a part of this or choose to go with it, and what happened? Yeah. So actually, when I first auditioned for this role, this was just after COVID, had ended in that sense, 2.5 years of Yeah. coming out of a lockdown. तो 2 ढाई साल तो obviously मैं घर पे था, कुछ चल नहीं रहा था. I won't like to talk about others, but I was depressed, overwhelmed, sad. I'm sure all of us were feeling that way. तो also creativity जो है वो थोड़ी stagnant सी हो गई थी because as an actor you need a setup, you need a character as compared to another artist, जो आप खुद कर सकते हैं, you need someone to approach you and act. तो वो 2 ढाई साल बहुत डिप्रेसिंग तो थे ही because of what was happening, but also creatively they were very stagnant. तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ था, आई रिमेम्बर आई गॉट रोहित शेट्टीज इंडियन पुलिस फोर्स. तो वो मैंने स्टार्ट किया शूट करना एंड उसी दौरान मैंने इसका टेस्ट किया था, अंधेरा का, जो कास्टिंग बे या नवरत्न मेहता का कास्टिंग. तो आई रिमेम्बर मैं एक्सेल के ऑफिस ही गया था फॉर द टेस्ट एंड दे रियली वांटेड मी टू टेस्ट बट समथिंग अबाउट माय लुक दे वांटेड टू चेंज. नवरत्न वाज देयर, ही वाज लाइक जैसे आपने कहा वो मैं क्यूट बॉय ज्यादा लगता हूँ एज कम्पेयर टू अ नर्ड, a medical student who's getting depressed. So they wanted to really test me because they thought that I'll fit this character, but they wanted to change something about my look. So I remember Navratna said that why don't we try and test you wearing specs? Uh, तो लकीली माय हाउस वाज रियली क्लोज बाय टू एक्सेल्स ऑफिस. मैं फटाफट गया, मैं स्पेक्स लाया एंड मैंने टेस्ट किया एंड दे सेड अच्छा नाउ वी आर गेटिंग समथिंग, वी कैन विजुअलाइज यू एज दैट मेडिकल स्टूडेंट. एंड देन वही जो एक प्रोसेस होता है पूरा टेस्टिंग का, आई टेस्टेड फॉर इट. फिर 1-2 महीने कुछ आया नहीं तो मुझे, यूजुअली आप ये सोचते हैं कि चलो निकल गया होगा हाथ से, किसी और को मिल गया होगा. But then a very strange thing happened, or a rather different thing happened this time around. When I was meeting actors who were in my age bracket, who were testing for this role, उनको मेरा ऑडिशन भेजा था एज अ रेफरेंस. तो आई रिमेम्बर आई मेट समवन, दे लाइक अरे तेरा ऑडिशन हमें आया है, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने तेरा रेफरेंस भेजा है टू ऐसे थोड़ा मैच करने के लिए. आई वाज लाइक व्हाट, दिखा दिखा, बिकॉज़ आई hadn't seen my own test. So I was like, दिखा दे, what is this? So, so then I think after some time, then I was called for a second round of tests, and this was with Prajakta. So this was to test our chemistry together. This was at casting base office. So हम पहली बार मैं प्राजक्ता से उधर ही मिला था. And the from the first get go, we just Click. we just knew there's something, there, because our energies are very different. Prajakta's energy and mine are actually very similar to Jay and Rumi's in the show. तो वो क्लिक हुआ, then I'm sure the director liked it, and then I got the part. फिर उसके बाद जो the process after that was something that I hadn't experienced before, they gave me the first 2-3 episodes to read, Gaurav and Raghav, Karan, Anshuman. So they trusted me to read the episodes, and if I had any feedback. तो I was very surprised. I was like, यार ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये मुझसे feedback मांग रहे हैं about what I ले रहे हैं. what I think. एंड मैंने एक आध कुछ जो मुझे लगा था सजेशन थी वो उन्होंने एक्सेप्ट भी करी. दे वर लाइक हाँ ये तो बेटर लग, मतलब ये कैरेक्टर में फिट हो रहा है.
तो उसके बाद से आई थिंक जो हम मिले हैं सब, मी, गौरव, राघव, इवन एक्सेल्स टीम, Karan, Anshuman, Mohit Shah, everyone, we just became like one family who were trying to do something different with this show. It is not a regular horror series. It's a bunch of horror, drama, supernatural, thriller. तो वो हम ambition ही वही था to create something new out of the Indian OTT and especially the Hindi OTT where you don't fit a show in one bracket. You because I feel life is also like that, right? आप Yeah, कोई yeah. हॉरर लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हॉरर भी है, हाँ, कुछ थ्रिलर भी है, कुछ लव भी है, ड्रामा, तो वो they wanted to encapsulate on that feeling and make a supernatural show out of that. So yeah, I'm just blessed that I got to be a part of this show, and I'm glad that the audience is connecting with it, and I'm glad that you enjoyed watching this show. what is the best compliment that you have received till now, and from whom? Okay, so I'm getting a lot of female attention Mm-hmm. after this show. So I'm making sure, and I'm getting really long messages. So I'm reading everything and I'm replying back to them. I'm posting it on my stories, thanking each and every person who's sharing. Because in today's day and age, I don't think किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो बैठ के पहले तो आपका इंस्टाग्राम खोलें, फिर मैसेज खोलें, फिर आपको इतना बड़ा मैसेज करें, फिर सेंड करें. तो एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार द लीस्ट आई कैन डू इज एक्नॉलेज दैट मैसेज, थैंक देम फॉर व्हाट दे आर सेइंग एंड पुट इट अक्रॉस एंड शेयर इट. तो मतलब जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि पीपल रियली लाइक द वल्नरेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर, दे लाइक द इंटेंसिटी. वो अभी है, वो थोड़ा जय बेचारा है, उसकी लाइफ में इतनी सब चीजें हो रही हैं, वो हॉन्ट भी हो रहा है, उसका तो ब्रदर आपका भी ध्यान कमा. रखना है ना? हाँ, so I'm glad that all the girls are looking after me. I'm really Oh, blessed. So yeah, so I'm getting a lot of, and also not just that, also from the medical industry actually. A lot of doctors have started following me. MBBS students have started following me. okay. I remember रात को ही किसी का मुझे मैसेज आया था saying कि मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं in 1 week लेकिन मैं बैठ के अंधेरा बिंज कर रही हूँ. तो she's like मैं क्या करूँ? I'm like आप फटाफट बिंज कर लो, उसके बाद आप I अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. तो ऐसे मैसेजेस तो आते हैं जो बिल्कुल ही अनअडल्टरेटेड है, राइट? इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है किसी का, कुछ भी. इट्स जस्ट प्योर कनेक्शन विद द शो एंड द कैरेक्टर. तो दैट इज द मोस्ट वैलिडेटिंग थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, आई फील. What is it one thing that changed in you after working, on the show? लाइक आई फील दैट मैं थोड़ा कम जजमेंटल हो गया हूँ एज अ पर्सन, Hmm. टुवर्ड्स टुवर्ड्स समवन who might be going through something, जो हो सकता है वो इंसान भले हर रोज एक ही टाइप के कपड़े पहनता हो या बहुत ऐसे मुरझाया हुआ सा लगता हो, सैड लगता हो. तो आई जस्ट फील दैट यू शुडंट जज समवन जस्ट ऑन हाउ दे लुक और हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स. हमें ये सिखाया जाता है बचपन से दैट यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, यू नीड टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन मैनर. बट आई फील कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस मानसिक परिस्थिति में नहीं होते हैं, जिनका मन करता है कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहने. Literally, or yeah, true. So वो through playing Jay's character, because he's going through so many things which are both real as well as supernatural. Hmm. By the end of it, I've realized that, I've become a lot more kind as a person, especially towards people who I don't know. तो मैं किसी को अब ऐसे जज नहीं करता हूँ कि वो कोई कैसे बात कर रहा है. हर एक की अपनी स्ट्रगल है, अपनी लाइफ है. तो एक वो परिवर्तन ज़रूर आया है मेरे अंदर, वेयर आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल. एंड आपके साथ जो लोगों ने काम किया, योर को-एक्टर्स, बहुत ही धांसू पूरा, आई मस्ट से द टीम इज़ अमेजिंग, हुँ. एवरीबॉडी. किनसे आपने क्या सीखा या समझा या एक पर्सपेक्टिव मिला, जो कभी पहले सोचा नहीं था? बिकॉज़ एवरीबॉडी विल ब्रिंग समथिंग विद देम, सो हुँ, या दैट यू कैन. हाँ, लाइक मेरे लिए तो द बेस्ट पार्ट वाज़ दैट जो 3 मेरे साथ मेन लेडीज़ जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिया, प्राजक्ता, सुरवीन, या. all 3 of these um, girls are so talented. And they come from such diverse backgrounds कि to share screen time with them or just to share the same space with them, you get a lot to learn. Like लोग उनकी खूबसूरती के बारे में तीनों की बहुत बात करते हैं, लेकिन the fact of the matter is they have so much substance and they are so talented that क्या होता है जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर लगती है.
because they give you so much in that scene where you just have to react. अब फॉर एग्जाम्पल प्राजक्ता के साथ मैंने थ्रू आउट द शूट बहुत ज़्यादा वक़्त स्पेंड किया था बिकॉज़ हमारे सीन्स इकट्ठे होते थे एंड देन हम चिल भी इकट्ठे कर रहे होते थे। हम बोथ ऑफ अस लाइक रीडिंग, तो वो एक कोने में अपनी कोई किताब पढ़ रही है, मैं अपनी पढ़ रहा हूँ। तो उससे मैंने ये सीखा कि वो इतना ज़्यादा मल्टीटास्क करती है दैट गर्ल, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इतना इंटेंस कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लाइन्स याद कर रहा हूँ। एंड वो आई आई रिमेंबर हम शूट्स मतलब सीन करके आते हैं वैन में, फिर वो कुछ कंटेंट बना रही है, साथ में उसको अगले दिन कुछ बिल गेट्स के साथ कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसके बाद उसकी कोई ब्रांड की शूट है। तो आई वाज़ जस्ट अमेज़्ड लुकिंग एट हर कि यार शी जगल्स सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। एंड उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आल्सो अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। तो वो मैंने उससे सीखा। प्रिया तो आई थिंक उसकी एक्टिंग के बारे में तो मैं जितना बोलूँ कम है। शी इज़ सो पावरफुल एंड like the thing is that not just working with her but even watching her while I was watching Andhera, I learned so many things through her performance. And she is so like so sweet as a person. She's so loving. She's so open where she doesn't really shy away from telling you that she likes you or loves you or as a friend. तो वो बहुत ही ऐसे दिलदार है एंड सुरवीन तो आई हैव लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर. I think the kind of year that she's having and the kind of person she is, like I aspire to be like her someday because she's so confident. She's so centered. Like when you meet her and spend time with her, you realize that she is not seeking any outside validation. She's like her क्या कहते हैं, focal of control is within her. तो वो तो आई थिंक उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है टू रीच एट दैट लेवल एज़ अ ह्यूमन बीइंग। बट मैं हर इन तीनों से बहुत अलग-अलग चीज़ें सीखा हूँ। Tell something about yourself. Tell me three things that people don't know. And you don't mind if they know these things. The thing that people don't know about, I think people don't know anything about me right now. I think I'm just starting. आपके बारे में बात की जाए. I think I'm more than the cute face that people हाँ. usually attach me with. उनको लगता है कि मैं बहुत ही ऐसे बेचारा हूँ या भोला हूँ। मतलब मेरे भी डार्क साइड हैं। मेरे भी अंदर डार्क साइड इन द सेंस दैट I just feel that like even I like things and I there are things that I don't like. एक तो ये चीज़ होगी एंड आई थिंक दूसरी चीज़ ये है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, स्पेशली क्रिकेट। तो मेरा जो फर्स्ट शो था सिलेक्शन डे, वो भी मतलब दैट इज़ समथिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज़ दैट आई हैव डन सिलेक्शन डे इन अंधेरा वेयर दे आर लाइक, "अरे! तू उसमें भी था?" बिकॉज़ माय लुक इज़ कंप्लीटली डिफरेंट इन दैट। Yeah. उसमें मतलब इसमें मेरी दाढ़ी है एंड उसमें आई एम प्लेइंग अ बुली एंड स्टफ एंड आई वाज़ यंगर आल्सो इन दैट। और मेरे बारे में लोग क्या नहीं जानते हैं। मैं बहुत ही अकेला रहना पसंद करता हूँ एक्चुअली। मुझे ज़्यादा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। आई लाइक माय ओन कॉर्नर इन माय हाउस। मैं लाइक मुझे अपनी कॉफ़ी और कोई शो या कोई बुक या नथिंगनेस आल्सो आई रियली एन्जॉय। लाइक वेयर आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम बाय माय सेल्फ। मुझे लगता है कि लाइक यू आर योर बेस्ट बुक। यू कैन कीप रीडिंग योरसेल्फ, यू कैन कीप अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स कि आपके अंदर क्या चल रहा है। एंड मुझे लगता है कहीं न कहीं एज़ एन एक्टर एंड एज़ एन आर्टिस्ट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्पेंड टाइम। तो मैं अपने साथ घंटों बिता सकता हूँ और मैं डाइकोटोमिस्ट भी हूँ बिकॉज़ फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं लोनर हो रहा हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं-नहीं कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही तो डिटैच नहीं कर रहा हूँ अपने आप को फ्रेंड से या फैमिली से। तो वो मैं थोड़ा डाइकोटोमिस्ट हूँ। मैं ऐसे मुझे समझ नहीं आता मैं किस साइड पे हूँ लाइन में। वैसे कुछ कुछ आसान सवाल पूछे जाए. Single or dating someone? Oh, me, I'm with my loved one. And it's been a while since we've been together. So yeah, I'm taken. Take it. Yeah. Taken. I should have asked that. Sorry, my Yeah. bad. What's your birthday? Yeah. Birthday 4th October. Okay. Beach or mountains? Beach. Coffee or chai? Coffee. What kind of music do you like? Rhythmic beats, like relaxing, like Roosevelt, Parcels, Yeah. उस टाइप का ज़ोन में it's just that it keeps your mind goes into Yeah. this trance, It gives a rhythm to your rhythm to your mind, and
फिर क्लासिक्स तो हैं ही, ए आर रहमान साहब हैं, जिनका मतलब एवरग्रीन है। वो तो आप कोई ड्राइव पे जाओ तो अपने, अगर ए आर रहमान जी का कोई गाना नहीं चला है तो वो तो ब्लास्फेमी है। बाकी मुझे पुराने हिंदी गाने बड़े पसंद हैं 80s के। नए भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ-कुछ नए अच्छे लगते हैं। नए में मैं इतना आजकल रिलेट नहीं कर पाता हूँ म्यूज़िक जो आता है। तो या बट पंजाबी गाने भी मुझे बहुत पसंद है। मैं आधा सरदार हूँ, तो मुझे पंजाबी दिलजीत दोसांझ के गाने बड़े पसंद हैं। तो हाँ, मेरा मिक्स है, चलता रहता है कुछ ना कुछ, मूड पे डिपेंड करता है। how do you define, I mean, what is the kind of an ideal date that you think you'll prefer? I think would be in some very remote place where there is nothing, just no internet, no phone, just nature with your loved one, just, having coffee, being like, especially where you can hear the birds chirp, you can hear the crickets sing, like very detached, like otherworldly. जहाँ आपका कुछ शहर से लेना देना नहीं है, it's just the two of you and nothing else and just nature. बॉम्बे में Yeah. रह के ये सोचना मतलब ये सोच ही सोच हाँ, ये आप सोचते हैं बस उसके बारे में। होता कुछ नहीं। हाँ, होता कुछ नहीं है। True, true. Okay, what next for you? So I'm doing 2 films after this. One film I'm gonna start shooting next month. So, yeah, I had to change my look for that. I can't say right now which film it is, but you'll know soon. I'm really excited for that project. And then there's another film which is still being written. It's hopefully it'll go on the floors by the end of this year or sometime early next year. So again, I think the production houses will know when to announce them. But yeah, I'm going to start my next project just early September. Yeah. बिफोर आई लेट यू गो, थोड़ी-सी अंधेरा के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस शो में, इस कहानी में, नॉट शो बट इस कहानी में, अगर आपको सूत्रधार बना दिया जाए कि Hmm. आपको कुछ बदलना है या आपको कुछ ऐड करना है, आप क्या करोगे? आई थिंक ऐड तो मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज इसमें इतने जॉनरास एनीवे मिक्स्ड हैं, जो थ्रिलर है, ड्रामा है, हॉरर है, साईफाई है, तो मैं ऐड तो कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं सूत्रधार बनूंगा तो मैं क्या करूंगा मैं? आई थिंक मैं आई फील आई वुड हैव and hopefully in the next season I would like to see a lot more of Jay and Rumi together, हुँ, their relationship, because I feel इस season में the writers have deliberately touched upon it that वो because वो इतना उन दोनों को emotional space नहीं मिला है to spend a lot of time with each other. हुँ, But hopefully in the next season, I would like to see them together, their journey as two human beings who love each other and have connected on a more emotional and a more deeper level. तो वो मुझे लगता है मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। बट इट्स गुड कि हमने जो शुरुआत की है इन दोनों कैरेक्टर्स की, बिकॉज़ अगेन आई एम गोइंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन कि मुझे ये भी मैसेजेस बहुत आ रहे हैं दैट दे फाउंड Jay and Rumi's character very endearing, या especially Gen Z, क्योंकि वो अपना प्यार का इज़हार जो है वो ऐसे खुले दिल से नहीं करते हैं, वो छोटे-छोटे वर्ड से करते हैं, "तू यहाँ क्यों आया है? तूने तो बुलाया था। तू इतना लेट क्यों है? सो गया था।" ये जो ऐसे जो द वे इट्स बीन रिटन, इट्स बीइंग कनेक्टेड, पीपल आर कनेक्टिंग विद दैट वे, व्हिच आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग बिकॉज़ मुझे लगा था कि रोमांस का एक अपना ज़ोन होता है जहाँ वो बहुत ही ऐसे क्यूट क्यूट बातें करते हैं एक-दूसरे से, क्योंकि हम तो कुछ क्यूट बात नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे से पूरे शो में। बट एक एक अंडरस्टैंडिंग है एक-दूसरे में, एंड दैट इज़ समथिंग पीपल आर कनेक्टिंग विद, बट येस, अगेन आई वुड रियली लव टू सी अ लॉट मोर ऑफ देम टुगेदर। तुम्हें कभी कोई ईरी वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है? यार मुझे बहुत हुआ है। एक तो सेट पे हुआ था। द थिंग इज़ जहाँ हम शूट कर रहे थे ना, जो मेरा रूम है, हुँ, जय का रूम है, ईरी मेरे लिए क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई दिखा या कुछ, इट्स द वाइब ऑफ अ प्लेस। ऑलवेज़ आई आप क एंड वाइब ऑफ अ प्लेस, अ पर्सन, वो मेरे को बहुत ईरी लगता है। कभी-कभी आप किसी को देखते हो एंड देयर इज़ समथिंग इनसाइड देयर आईज़ व्हिच यू फाइंड वेरी क्रीपी। या Where you are like, यार मैं उसको नहीं देख सकता हूँ, there's something in his eyes where I'm feeling very हुँ, uncomfortable. तो इस शो के दौरान जो मेरा रूम था जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जय का रूम, उस रूम में एक तो अजीब सी एक स्मेल थी, which was जो थिंग इज़ वो पूरे लोकेशन में नहीं थी, बस उस स्पॉट पे बिल there was something एंड जो सिर्फ मुझे आ रही है और किसी को नहीं लग रहा है, वो प्रोडक्शन में या डायरेक्टर, लाइक वो मुझे आ रही है। And I used to step inside that room and I used to start palpitating. My heart rate used to go up. I used to get like sweat
beads on my head. एंड सो मच सो कि पहले मुझे लगा था यार कि हो सकता है दिमाग में चल रहा है ये सब, बिकॉज आई आप Obviously. कैरेक्टर के साथ, Yeah, हाँ वो कैरेक्टर के साथ भी आप इतना टाइम बिता चुके हो तो हो सकता है उसका कुछ हो। बट आफ्टर वन पॉइंट इन टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो मैं गौरव राघव को मैंने बोला यार प्लीज एटलीस्ट थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बिफोर गोइंग इनसाइड, बिकॉज मुझे अंदर जाया ही नहीं जा रहा है एंड आई एम गेटिंग इरिटेटेड, लाइक बिकॉज it's like my body doesn't want to be in that place, Hmm. but I have to be because it's my job. Yeah. तो ये एक्सपीरियंस हुआ था एक सेट पे, बट लकीली वो उस लोकेशन पे इतनी इतनी ज्यादा शूट नहीं थी, तो मैं तो बहुत खुश हुआ था जब वहां हमारे सारे सीन खत्म हो गए थे। I was like, भागो यहाँ से यार, अजीब सा रूम है ये बिल्कुल, कोई मत आओ इधर। And how do you define fear? What scares you? It is fear, I think, is only scary when you think something is fearful. Like fear in itself is not scary. It's only when you think that this thing um, is fearful, तो वो fear होता है. But actually में अगर आपको, like for example in this shoot there was a scene जहाँ पे मैं, because you watched the show, where I'm suspended in the air, Hmm. and वो actually में हमने studio में shoot नहीं किया है. We actually shot it on top of a building, What? and yes, and वो they put me over the ledge, and the thing is एक्शन डायरेक्टर्स ने ऑब्वियसली पूरा हार्नेसिंग वगैरह करवाया था, लेकिन आप जब नीचे देखते हैं अंधेरे में, जब आपको कुछ नहीं दिखता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज यही आती है कि अगर ये हार्नेस किसी ना किसी तरह टूटा तो आप सीधा नीचे जाओगे। God. तो एंड सो द थिंग इज वो अगेन वो दिमाग में आपके फियर है कि अगर ये टूटा, अगर What if? ये व्हाट इफ, तो द फियर लाइज इन द व्हाट इफ, नॉट इन द एक्चुअल फॉलिंग। वो आपको पता भी नहीं लगेगा अगर वो हुआ कि Exactly. क्या By हुआ। the time you realize you're gone. हाँ, हाँ, हाँ। तो आई थिंक द फियर लाइज इन द व्हाट इफ, नॉट द एक्चुअल फियर। Okay. Was a very nice response, and I think on this very lovely philosophical note, I should let you go. Anything थैंक यू सो else मच। that you would want to add, or you would want to share? You can. No, I'm just enjoying the fact that people are liking a show which is the first of its kind in India, especially in the Hindi OTT, because Yeah. it's a genre bending show. It is not a horror, it is not just a thriller. It is a combination of and a mixture of a lot of genres Yeah. which requires people to pay attention to. Hmm. दिस शो कैन नॉट बी वॉच्ड पैसिवली। आप अपने किसी फ़ोन पे या काम करते हुए नहीं देख सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपने एक बार वो लय छोड़ी शो की, आपको समझ नहीं आएगा कि स्टोरी ए से डी कैसे पहुँची, बिकॉज़ आपने बी और सी बीच में मिस कर दिया। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू इनवाइट पीपल बैक टू दैट ओल्ड स्कूल व्यू ऑफ वॉचिंग कि भाई आप एक चीज़ आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। Hmm. आप 2-3 चीज़ें मत करिए, ये पैसिव व्यूइंग के लिए नहीं है शो। आप अगर इसमें ध्यान लगाएँगे, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा इसके अंदर। आई थिंक ये इंडियन ओटीटी के लिए आई फील इट्स अ रियली गुड स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज़ हम हमेशा वेस्ट को देखते हैं कि यार वो कितनी इन्वेंटिव चीज़ें बनाते हैं। उनके यहाँ पे डार्क जैसा कोई शो आ रहा है या और ओए जैसा कोई शो आ रहा है, Yeah. एंड Yeah. हम ये सोचते हैं कि इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है? And I feel like this is that step forward where it will invite a lot of other creators also to make something Yeah. contemporary. True. In True. fact, so many people who are messaging me from outside India are more shocked. They are like कि यार हमने तो सोचा था हॉरर शो है, पर इसमें तो ना कोई भूत बंगला है, ना कोई चुड़ैल है, ना आत्मा है, ना जंप स्केयर्स इतने हैं। But I was like, this is a psychological horror. True. And Excel has done that before with the Talash. Hmm. Even Talash was something that had touched on that psychological thriller horror Yeah. bit. This is taking it 10 steps further and, having a supernatural entity and having, an otherworldly presence in a city like Bombay. So I'm great that, I'm attached to this new wave of genre bending shows, which I can assure you will only increase from here on with the advent of AI, VFX. ये बस अभी बढ़ेगा and yeah, I'm just happy that I've stepped onto the right genre at the right time. Lovely. Yes. Congratulations and all the best for your future projects. It was lovely talking to you. Thanks a lot. Likewise, Chirantana. Thank you so much. Thank you.
સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.